Good morning, students. Let's start with your new topic, Democratic Resurgence, from your second part book, Politics in India Since Independence. This is a new topic in your book, and the name of the topic is Democratic Resurgence. Resurgence means reappears and something start to grow. That means कि दोबारा से जो है उस चीज़ को रीन्यू करना एंड अ न्यू स्टार्ट फॉर अ रिवाइवल. तो दिस इज़ अ न्यू टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक was Deen Dayal Upadhyaya from this chapter, Democratic Resurgence, and second topic we will start Ram Manohar Lohia and Socialism. Thank you. Ram Manohar Lohia, born on 23rd March 1910, and he was an Indian freedom fighter, a nationalist and a socialist leader of India. He was considered to be the voice of poor in the Indian Parliament. उनका जन्म जो हुआ 23 मार्च 1910 में, इंडियन फ्रीडम फाइटर है, एक नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट लीडर थे इंडिया के, और उनको जो है वॉइस ऑफ पुअर, गरीबों की आवाज़ जो है इंडियन पार्लियामेंट में जो है वो जाना जाता भी है. तो नेक्स्ट वन है राम मनोहर लोहिया, जो इंडियन पॉलिटिकल लीडर है. Ram Manohar Lohia was an Indian political leader. He was an activist in the Indian independence movement and the socialist political leader. Dr. Ram Manohar Lohia was the socialist political leader, greater thinker, as well as the noted freedom fighter of India. कि उनको जो है वो जाने पहचाने फ्रीडम फाइटर है इंडिया के, एक जो समाजवादी पॉलिटिकल लीडर है, और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारा जो है इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट में बहुत ज़्यादा अपना जो है योगदान दिया. ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एट एन अर्ली एज. ही मेड हिज फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फ्रीडम स्ट्रगल बाय ऑर्गेनाइजिंग अ स्मॉल हड़ताल ऑन द डेथ ऑफ लोकमान्य तिलक. लोकमान्य तिलक की डेथ के ऊपर उन्होंने जो है एक स्मॉल जो है हड़ताल जो ऑर्गेनाइज की, और अपना फर्स्ट कंट्रीब्यूशन उन्होंने आज़ादी में पहले वो दिया. ही वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय गांधी जी स्पिरिचुअल पावर एंड रेडियंट सेल्फ कंट्रोल डैट ही प्लेज टू फॉलो द महात्मा फुटस्टेप. तो वो महात्मा गांधी से काफ़ी जो है प्रभावित थे, जिस कारण उनके नक्शे कदम पे वो चलना चाहते थे. लोहिया रोट हिज PhD thesis paper on the topic salt taxation in India and focusing on the Gandhi's socio-economic theory. तो उन्होंने जो है जो नमक कानून था, सॉल्ट मार्च के ऊपर, सॉल्ट टैक्सेशन के ऊपर, जो नमक के ऊपर जो टैक्स लगाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसके ऊपर उन्होंने अपनी जो है थीसिस लिखी, तो जिसमें उन्होंने गांधी की जो सोशियो इकोनॉमिक थ्योरी थी उसके ऊपर फोकस किया. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन of Ram Manohar Lohia. Maybe you all have understood. Thank you. Education of Ram Manohar Lohia. Ram Manohar Lohia was born in 1910. His father, Hira Lal, was a merchant in Faizabad in UP. His mother died when he was only 2 years old. The boy's grandmother brought him up. उनके grandmother ने उनका पालन पोषण किया. His father was a devoted follower of Mahatma Gandhi. Little Lohia saw Gandhi for the first time when he was only 9 years old. लोहिया ने 9 years old, जब 9 साल के थे, तो उन्होंने गांधी को फर्स्ट टाइम देखा. The Indian National Congress held its plenary session that means to be attended by all the participants at the conference in Bihar, where he was a Congress volunteer. Further, he attended the 1926 session at Guwahati. Lohia received his education in Bombay, Benares and Calcutta. He passed his matriculation examination in first class in 1925. After a 2-year course, he joined the Vidyasagar College in Calcutta. In 1929, he passed the honors examination in English literature. Even in his student days, he was attracted towards the political agitation. He went to Germany for his higher studies in the University of Berlin. At that time, Hitler was in the power
in Germany. So Lohia wrote his doctoral thesis. His subject was the Salt Satyagraha in India. He was awarded doctorate in both economics and political science. So this is all about the early life and education of Ram Manohar Lohia. Maybe you all have understood. Thank you. Political career of Ram Manohar Lohia. Lohia became the editor of periodical of Congress Socialist Party. With his Western education, he passed his higher education from the University of Berlin from Germany. So Lohia was well versed, that means skilled in international affairs. The Congress established a new branch of external affairs with the help of लोहिया एंड लोहिया हैड टू लुक आफ्टर इट्स एडमिनिस्ट्रेशन. लोहिया ही उनके सारे जो हैं शासन प्रबंध को देखते थे. एंड लोहिया मेड इट पॉसिबल फॉर द कांग्रेस पार्टी to have contact with the all progressive thinkers of different nations of the world. Lohia met with Jawaharlal Nehru in 1921 and काफ़ी सालों तक जो है उनके एक अच्छे रिलेशंस रहे आपस में. लोहिया जो थे सोशलिज्म से काफ़ी प्रभावित थे क्योंकि वो गरीब किसानों के लिए, वर्किंग क्लास के लिए, गरीबों के लिए काम करना चाहते थे. तो जिस कारण उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी जो है वो बनाई इन 1934. So next one concept is anti-Congresism. Anti-Congresism means against Congress. तो राम मनोहर लोहिया और जवाहरलाल नेहरू के बीच में काफ़ी हद तक जो है बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही काफ़ी सालों तक. लेकिन जो राम मनोहर लोहिया थे वो सोशलिज्म से प्रभावित थे और वो गरीब किसानों और गरीब लोगों के लिए काफ़ी आवाज़ उठाना चाहते थे. So when India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru sat in the Parliament for the first time on 6th December 1963, then the Samajwadi Party leader Ram Manohar Lohia जो हैं उनके बिल्कुल सामने बैठे एंड लोहिया ने क्वेश्चनिंग की नेहरू से for the daily expenditure and said the Prime Minister must answer why his expenditure is real 25,000 in the country where a common man's expenditure in 3 annas. कि हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको आंसर देना बनता है कि क्यों उनका खर्चा जो है एक दिन का 25,000 है, वहीं हमारे जो एक आम इंसान का जो है इंडिया में खर्चा 3 आने हैं. तो फ्रीडम फाइटर जो राम मनोहर लोहिया थे, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्पीक अगेंस्ट द कांग्रेस. ही वॉज अ समाजवादी थिंकर, पॉलिटिशियन एंड राइटर. व्हेन इंडिया वॉज सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस, criminal violence broke in Kolkata. Then Gandhi was in Kolkata to end the tension. Everybody had forgotten about Gandhi, but Ram Manohar Lohia was with him there. So this is all about the Ram Manohar Lohia as the political leader and anti-Congresism. Maybe you all have understood. Thank you. Lohia. Ram Manohar Lohia returned to India from Germany in 1932. At that time, the Satyagraha and civil disobedience movement launched by Gandhi ji was fast spreading throughout the India. तो उस वक्त जो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस और सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए थे वो बहुत तेजी से जो है वो स्प्रेड हो रहे थे पूरे इंडिया में. तो लोहिया भी इन्हीं मूवमेंट्स में जो है वो कूद पड़ा. तो क्या रिवार्ड मिला उनको इस चीज का? उनको इम्प्रिजनमेंट, दैट मीन्स जेल हो गई. जस्ट देन द यंगर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी बिगन टू फील दैट द एल्डर्स वर नॉट मूविंग फास्ट इनफ. तो जो यंगर मेंबर्स थे, युवा पीढ़ी थी कांग्रेस मेंबर्स की, तो उनको लगा कि जो एल्डर मेंबर्स हैं वो इतनी तेजी से काम नहीं कर रहे. Some of those youngsters were imprisoned in Nasik Road jail and they had a great compassion for the poor, the peasantry and the working class. उनके मनों में गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए बहुत दया भावना थी. वो उनके लिए कुछ करना चाहते थे. So they formed a youth wing in the Congress and called it the Congress Socialist Party. तो उन्होंने यूथ विंग ने, जो युवा पीढ़ी थी कांग्रेस की, उन्होंने अपनी अलग से एक पार्टी बना ली जिसको नाम दिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी. अमंग द फाउंडर्स ऑफ दिस पार्टी, इनके जो मेन मेंबर्स थे इस पार्टी के, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, वो राम मनोहर लोहिया, यूसुफ, अशोक मेहता, कमला देवी, आचार्य नरेंद्र देवा, जयप्रकाश नारायण थे. तो दीज पीपल ड्रीम्ड ऑफ बिल्डिंग अ यूनाइटेड इंडियन नेशन. उन्होंने एक यूनाइटेड इंडियन नेशन बनाने का सपना देखा एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस, इसको पाने के लिए दे डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द ब्रिटिश रूल. उन्होंने क्या डिसाइड किया? सबसे पहले ब्रिटिश रूल को, यहाँ से अंग्रेजों का रूल जो है वो खत्म करने के लिए.
So this is all about the national movements. Next one is literature work of Ram Manohar Lohia. The first book he wrote, The Caste System, in 1964. Second, The Fragments of World Mind. Third one, Guilty Men of India's Partition. And fourth one is Marx, Gandhi and Socialism in 1963. In 1929, Ram Manohar Lohia passed the honors examination in English literature. Even in his student days, he was attracted towards the political agitation. He went to Germany for the higher studies in the University of Berlin. At that time, Hitler was in the power in Germany. So Lohia wrote his doctoral thesis. His subject was Salt Satyagraha in India, and he was also awarded doctorate in both economics and political science. So this is all about the literature work and national movements of Ram Manohar Lohia. Maybe you all have understood. Thank you. Lohia as a freedom fighter. Ram Manohar Lohia opened a separate cell in the order to protect the interest of Indians abroad. ताकि जो इंडियंस जो हैं अब्रॉड में देशों विदेशों में बैठे थे तो उनके इंटरेस्ट को भी कैसे जो है इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनके लिए उन्होंने एक सीक्रेट सेल जो है वो बनाया. इन 1936 लोहिया जो थे वो इलेक्टेड मेंबर बने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के. एंड ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द कंट्री एंड ड्रू द यंग मैन इनटू द फ्रीडम मूवमेंट. तो यंग जो है यंग मैन जो थे, युवा पीढ़ी थी, उनको कैसे फ्रीडम मूवमेंट में जो है वो शामिल करना, इसके लिए उन्होंने पूरी कंट्री को जो पूरे इंडिया में वो ट्रेवल उन्होंने किया. द ब्रिटिश इम्प्रिजन्ड हिम इन 1938 इन कलकत्ता. तो ब्रिटिशर्स ने उनको जो है वो जेल में डाल दिया 1938 में. देन वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रॉक आउट इन 1939 में जो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड लग गई एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्सफुली इन्वॉल्व इंडिया इन द वॉर. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जबरदस्ती जो है इंडिया को इन्वॉल्व कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में. देन लोहिया वॉज अगेंस्ट दिस वॉर. फॉर हिज एंटी वॉर स्पीचेस द ब्रिटिश अगेन पुट हिम द बिहाइंड द बार्स इन 1940. तो ब्रिटिशर्स ने अगेंस्ट इसके 1940 में जो है राम मनोहर लोहिया को दोबारा से जो है जेल में डाल दिया. इन 1942 गांधी गेव अ कॉल टू द नेशन एंड थ्रू अ चैलेंज टू द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया. 1942 में महात्मा गांधी ने पूरे नेशन को, पूरे राज्य को जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट की क्विट इंडिया मूवमेंट वो स्टार्ट किया. देन द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट इन बॉम्बे एंड द लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट. तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे बॉम्बे में मिले और उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को जो है वो लॉन्च किया. ऑन द 9th अगस्त द ब्रिटिशर्स ने उनको दोबारा से जो है बहुत सारे नेशनल लीडर्स जो थे, कांग्रेस लीडर्स थे, महात्मा गांधी हु गेव द कॉल डू और डाई, उन सबको जो है वो जेल में डाल दिया. एंड स्पेल बाउंड बाय द स्लोगन द एंटायर नेशन स्टूड अप अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. जो महात्मा गांधी ने डू और डाई का जो है वो स्लोगन दिया, उसकी वजह से पूरा एंटायर नेशन जो था, पूरा हिंदुस्तान था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो खड़ा हो गया. मेनी ऑफ द नेशनल लीडर्स इन्वेडेड द पुलिस एंड ऑर्गेनाइज्ड द मूवमेंट. लोहिया वाज अमंग्स द फोरमोस्ट. तो लोहिया इन सबसे आगे था. ही स्टार्टेड अ सीक्रेट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन विद द जयप्रकाश नारायण एंड ही ऑर्गेनाइज्ड एज द अंडरग्राउंड मूवमेंट. तो इसके बाद जो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने एक सीक्रेट जो है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बना लिया. डैट मीन्स उन्होंने जो है खुफिया तरीके से जो है वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट कर दिया. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन प्रेजेंट लोहिया अगेन इन 1944. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1944 में दोबारा से जो है राम मनोहर लोहिया को जो जेल में डाल दिया और उनको काफी तरीके से जो है वो टॉर्चर किया गया. लोहिया को लास्ट में जो है 1946 में जेल से रिहा किया गया. एंड एट दैट टाइम इंडियाज फ्रीडम वाज इन साइट. जो इंडिया की फ्रीडम जो थी वो रास्ते के ऊपर ही थी, वो नजर आ रही थी. बट फ्रीडम फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिश डिडंट मीन द फ्रीडम फ्रॉम द पोर्चुगीज. तो उन्होंने बोला है कि जो ब्रिटिशर्स से आज़ादी का मतलब ये नहीं था कि पोर्चुगीज जो है उनसे हमें आज़ादी मिल जाती. उस वक्त जो पोर्चुगीज थे, इंपीरियलिस्ट जो थे, वो रूल कर रहे थे गोवा, दीव और दमन के ऊपर पिछले 450 सालों से. एंड देयर रूल वॉज मोर फ्राइटफुल देन दैट ऑफ द ब्रिटिशर्स. सो लोहिया ने जो क्या किया, अपनी जो इस वक्त अटेंशन थी अपनी गोवा की तरफ कर ली ताकि उनको जो है वो दोबारा से जो है वो गोवा को क्या कर दें,
आज़ाद करवा दें। When he entered the Goa, the Portuguese government arrested and deported him. तो पोर्चुगीज गवर्नमेंट ने जो है जैसे ही उन्होंने गोवा में एंटर किया तो उनको जो अरेस्ट करके जो है जेल में डाल दिया। तो जो लोहिया थे उस वक्त उन्होंने लिबरेशन ऑफ जो गोवा है उस वक्त उसकी फाउंडेशन जो है बनाई ताकि जो फॉरेन डोमिनेशन से जो है गोवा को आज़ाद करवा सकें। इसके बाद नेपाल में जो है राणा डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी। तो लोहिया ने उनके पॉलिटिकल गुरु और मेंटर बन गए किसके, जो नेपाली लोगों के। तो उस वक्त उन्होंने काफी जो है इन राणा डायनेस्टी के अगेंस्ट बोला और लोगों को इंस्पायर किया कि वो नेपाल को जो है वो कैसे आजाद करवाएं और उनके रिवोल्ट और उनकी मूवमेंट्स में काफी हिस्सा लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द एज द फ्रीडम फाइटर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का ये जो स्टैचू है वो गोवा में जो है वो लगा हुआ है। सो मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो सोशलिस्ट लीडर थे 57 की एज में 12 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई न्यू दिल्ली में। तो डॉक्टर लोहिया वॉज ऑपरेटेड अपॉन फॉर अ एनलार्ज प्रोस्टेट लैंड ऑन September 30 and Dr. Lohia was in very critical condition from Tuesday 10. Doctor attending on him said medicines had very little effect on him and the passing of Dr. Lohia removed one of the most brilliant figure from the Indian politics. डॉक्टर लोहिया को जो रिमूव हो जाना, खत्म हो जाना, डेथ हो जाना, एक मोस्ट ब्रिलियंट फिगर जो थी वो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में चले जाना है और उनकी कमी हमेशा जो है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट वन इज लेगेसी। His open-ended vision of socialism was shaped by an awareness of international events as well as by the deeply felt need to go and promote the independent models of socio-political development. So Lohiya's fiery adherence to debate and critical thought is a legacy to be cherished and take seriously once more. तो नेक्स्ट वन जो है तो बीजेपी गवर्नमेंट जो है उनके जितने भी आइडियाज हैं, उनके जितने भी थॉट्स हैं उसके ऊपर जो है सीरियसली जो है वो दोबारा से डिबेट कर रही है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डिवोशन जो उनके थॉट्स हैं उसको दोबारा से उनके ऊपर काम कर रहे हैं। राम मनोहर लोहिया जो थे सोशलिज्म से काफी प्रभावित थे, जिस कारण उन्होंने सोसाइटी आम जो है गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए आवाज उठाई। तो पीएम मोदी जो हैं वो मतलब टाइम टू टाइम जो है वो ट्वीट करते रहते हैं और पीएम मोदी जो हैं लोहिया की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर काफी ट्वीट करते हैं और उन्होंने न्यूज में बोला था कि डॉक्टर लोहिया ये देखकर जरूर हैरान परेशान होते होंगे कि उनके अनुयायी के लिए अपने परिवारों के हित देश हित से ऊपर है। डैट मीन्स यहाँ पे किसको एंटी रखा गया है, कांग्रेस को, कि जो उस वक्त नेहरू थे तो उनके लिए जो परिवारवाद था वो अपने देश हित से ज्यादा ऊपर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द राम मनोहर लोहिया टॉपिक। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।